So welcome back to the next series on which we are discussing about the applications of Bohr's postulate. We are going to cover with the other three formulas which are left, that is radius of an orbit and velocity of the electron in the nth orbit. I hope you are enjoying this session. This session will be followed by question solving techniques in which we'll take a few questions of past year examinations and see the question solving procedures, which will save your time as well as increase your accuracy. So just stay tuned and watch till the end. क्या होने वाली है? It will increase, isn't it? Interesting factor. दूसरी चीज़ पर आते हैं. दूसरी चीज़ पे देखते हैं. So Rn is indirectly proportional to Z. Z का मतलब क्या है? Z का मतलब है atomic number. To prove our point, let us find the radius for the orbits for helium ion. अब helium ion के लिए करोगे तो Z की वैल्यू कितनी हो जानी है? Z की वैल्यू हो जानी है 2. So R1 for helium ion will be equal to 0.529 into 1 का square upon 2 means what? R by 2. R2 for helium ion कितना हो जाना है? 0.529 into 2 का square divided by 2 कितना हो गया? 2R. Then similarly R3 for helium ion का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.529 into 3 का square divided by 2. That is how much? by 2R. Same चीज़ जब हमने हाइड्रोजन के लिए की थी. So for hydrogen atom it was coming to be R, 4R, 9R. ये क्या शो कर रहा है? And then if you calculate for lithium again changes आएंगे. So what is this showing? This is showing us the interesting conclusion that as atomic number increases, our radius decreases. ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स will increase. Number of protons increases means attractive pull coming from the nucleus to the electron will also increase, and this is called as effective nuclear charge, isn't it? So nuclear charge. So we can say हमारा जो atomic radius है that will be indirectly proportional to our atomic number. So hydrogen का radius will be greater as compared to same orbit of helium का radius and same orbit of lithium का ion का radius and so on. और चीज़ जो हमारे को यहाँ पर काम आएगी दैट इज रिलेटेड टू अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो कुछ वेलोसिटी भी तो चाहिए. सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? आई एम यूजिंग द नोटेशन Vn. तो हमने कैलकुलेट किया और उसका जो वैल्यू आया दैट केम आउट टू बी 2.18 into 10 raised to the power 8 up to Z upon n in centimeters per second. अब इसके conclusions करते हैं. तो Vn is indirectly proportional to बड़ा ऑर्बिट, मतलब जितना बड़ा ऑर्बिट उतना वो स्लो होता जाएगा. सो ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए करते हैं तो Z का वैल्यू 1 होगा. सो V1 का वैल्यू क्या हो जाना है? 2.18 into 10 raised to the power 8 into 1 upon 1, और आई कैन से इट एज V. दूसरा वैल्यू निकाल लो अब अपने आप से. सो अगेन into Z upon n, that means it will become V by 2. V3 का वैल्यू निकाल लो. it will become this into 1 by 3. So see, as you are moving away from the nucleus, your velocity is decreasing. Next, Vn का जो value है वो directly proportional है Z के. That means what? Now for helium ion, if I calculate, that means Z का value हो जाएगा 2. So first orbit की velocity for helium ion it will be 2.18 into 10 raised to the power 8, 2 upon 1. That means it is 2 times velocity of hydrogen atom.
hydrogen atom. Then again similarly for second atom if I calculate, so it will again come out to be 2 times velocity of hydrogen atom in second orbit and so on. तो जितना atomic जितना effective nuclear charge बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। वेलोसिटी और रेडियस को यूज़ करते हुए कुछ और फॉर्मूला कुछ और कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए जाते हैं। सो व्हाट आर दोज कॉन्सेप्ट? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। Now what do you mean by frequency? Frequency का मतलब है that means number of revolutions made per second, per unit time। यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं सेकेंड्स का। So यहाँ पर कैसे करें? So we know velocity is equal to distance traveled in one revolution। That means कितना distance travel होगा one revolution में perimeter of the circle orbit के बराबर, that is 2 pi r divided by time taken is will be what? Time period. So time period. So remember I told you frequency stands for 1 upon time period. So that means I can write this is nothing but 2 pi r into frequency, and this frequency I can say this is my orbital frequency. So basically can I simply conclude that orbital frequency is nothing but velocity upon 2 pi r. Okay, अब किसी जिस भी ऑर्बिट के लिए निकालनी है, so we'll put the values of n. Now remember velocity was directly proportional to z upon n and radius was directly proportional to n square into z. So हमारा जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएं, so it will become z square upon n cube. दूसरा जो डिराइव्ड फॉर्मेट पूछा जाता है दैट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड यू नो टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी बताया इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, मीन्स टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑन z स्क्वायर। तो ये नोटेशन दूसरा याद रखना है। ठीक है, सो ये तो बहुत इजी सा लगा। अब हम लोग what we are going to do next is let us solve some questions related to this, जिससे हमारा ये concept और अच्छा our understanding is better. क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड, जो अभी जनवरी में 2020 में हमारा जो जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें दिस इज ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड। नाउ इट इज सेइंग डिटरमाइन द रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट फॉर n इज इक्वल टू 2। तो रेडियस, तीन ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं अच्छे से। तो रेडियस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? 0.5 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? इंटू n स्क्वायर अपॉन z। अब इन्होंने दिया हुआ है फॉर हाइड्रोजन है, फॉर हाइड्रोजन दिस विल बी 1 एंड n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देयर इज ओनली वन एटम, सो n विल आल्सो बी 1। सो फॉर हाइड्रोजन एटम दे हैव गिवन अस Rn क्या हो जाएगा? Rn will be equal to 1 पुट करो, so R1 will be equal to K and K का and this is given in the question, this Rn value is, so basically हमारा K की वैल्यू क्या हो गई? A0। Now if I calculate for lithium ion, सो लिथियम आयन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो Rn क्या हो जाने वाला है? Rn डैश विल बी अगेन सम कांस्टेंट इनटू n स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है n की वैल्यू क्या रखनी है? 2 का स्क्वायर अपॉन फॉर लिथियम आयन z का वैल्यू कितना होता है? 3। So just put it. So this will become this. So what will be the value of this? This will become 4k upon 3. K को we are replacing by A0. So according to you, which option is correct? The second option stands correct. See, very simple concept application. Moving to the next concept. This is a question which has been asked in 2019. Let us go through the question. What is the ground state? Now ground state matlab if you have only one electron, so that means ये न्यूक्लियस है
ये तुम्हारा घर होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा एंड दिस ऑर्बिट विल बी कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड हो गए तो कहाँ जाओगे, फर्स्ट फ्लोर से जंप करके तो सेकेंड फ्लोर पे जाओगे। सो सेकेंड ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहली बार एक्साइट हुए तो कहाँ गए। सिमिलरली when you get excited you'll move to the more orbits, so n is equal to 3 means second excited state। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है second excited state means indirectly वो हमें बोल रहे हैं हमें थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करनी है। ओके और z का वैल्यू हमें दिया हुआ है, z का वैल्यू कितना है, हीलियम के लिए 2 होगा। फाइन, अब एनर्जी का फॉर्मूला याद करो। यस टेल मी, इट इज 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो इट विल कम आउट टू बी 13.6 इंटू जेड की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मीन्स 13.6 इंटू 4/9। अब अप्रॉक्सीमेशन करो, 4/9 मीन्स ऑलमोस्ट हाफ। ऑलमोस्ट हाफ का मतलब इस आंसर का ऑलमोस्ट हाफ। देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा जो ऑलमोस्ट हाफ होगा। अप्रॉक्सीमेशन करने से हमारा टाइम और एक्यूरेसी दोनों बचता है विच आर रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो देखो क्वेश्चन ईजी है। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो रेडियस का क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो नाउ यू ट्राई डूइंग इट योरसेल्फ। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, पॉज करो, अपने आप करने की कोशिश करो। सो n की वैल्यू 2 है, यहाँ डायरेक्टली दिया है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं दिया है। सो वील टेक सेकेंड बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। Okay, so what is the formula? That is 0.529 into n square upon z। हाइड्रोजन 1 दिया है क्योंकि हमें हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 होगी क्योंकि हाइड्रोजन है। सो जस्ट ट्राई टू पुट इट, सो इट विल बिकम व्हाट 0.529 into 2 का स्क्वायर मीन्स इट विल बी 4। सो solve this out to be approximately 2.116 in angstrom and which can be written as approximately 2.12 स्ट्रॉन्ग। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हुआ। सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन ये जेईई मेंस 2015 में पूछा गया है, सो वी सॉल्विंग दिस वन। Which are the possible states for hydrogen atom? Means Z is equal to 1। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, कितनी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ 13.6 एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, प्लस में दिया है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स नेगेटिव और उसका सिग्निफिकेंस भी पता है। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस पे नहीं जाना। वो तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग सेकेंड ऑर्बिट के लिए मैच करते हैं। तो व्हाट इज द एनर्जी फॉर द सेकेंड ऑर्बिट, अगेन इट विल बिकम 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड दैट इज 4। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये ऑप्शन है। अब प्लस एंड 6, आई टोल्ड यू द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइजिंग, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लेंगे, उसके बीच की कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। डिड यू गेट द एलिमिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन? सो वी नो आयनाइजेशन एनर्जी and total energy are approximately, they are same in magnitude but with opposite sign. What is the formula to calculate this? So I say this is some constant k। जब भी क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हो तो k को यूज करो, कैलकुलेशन बचता है। दिस इज अ स्मॉल टिप, सो इट विल बिकम z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन फॉर लिथियम हीलियम आयन। तो हीलियम आयन के लिए व्हेन आई एम गोइंग टू पुट इट इज 19.6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -18 इज इक्वल टू k। z का वैल्यू हीलियम के लिए कितना हो जाएगा 2, और फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सो इट इज n इज इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। वैल्यू है
क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 19.6 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 4। नाउ फॉर लिथियम आयन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो z का वैल्यू कितना हो जाना है 3, और फिर से स्टेशनरी ऑर्बिट बोला है तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सो हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा 9 दिस k का वैल्यू इंटू z² upon n square। सो ये कितना हुआ, दैट विल बी 13.6। अब अप्रॉक्सीमेट करो, सो दैट मीन्स इट शुड बी डबल ऑफ दिस। तो आंसर कितना आएगा, इसको डबल करोगे 44.1 इंटू 10⁻⁻18। बट ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हम डेसिमल चेंजेस करते हैं। सो ऑन डूइंग डेसिमल चेंजेस दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 44.1 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये सभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा जो ऑप्शन है वो है तो बट विद द नेगेटिव सिंबल। कैन यू टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव सिंबल? रीड द क्वेश्चन अगेन। यस, देखो एक ऑप्शन को जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है ताकि आप नेगेटिव क्वेश्चन गलत क्वेश्चन को मार्क कर गलत ऑप्शन को मार्क करें और नेगेटिव मार्किंग में कन्वर्ट हो। तो देखिए उन्होंने पूछा है आपसे एनर्जी, ये ऑलरेडी नो एनर्जी ये है, और हमने क्या कैलकुलेट किया था, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो दिस इटसेल्फ शोज कि हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बेसिकली 3 फार्मूलाज से रिलेटेड आते हैं, दैट इज़ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड वेलोसिटी। इन्हीं तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इन तीनों से। नाउ स्टिल अगर डेरिवेशन की नीड रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ डू कमेंट में, बिकॉज वो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए मैंने इस पार्ट को स्किप कर दिया। थर्ड थिंग,